हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एनर्जी फ्लो थ्रू ऑन इकोसिस्टम। तो ये एनर्जी फ्लो थ्रू ऑन इकोसिस्टम, द एनर्जी एंटर इनटू द इकोसिस्टम इन द फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशन एंड कन्वर्टेड into a food is a plant biomass by their producer. The food stored by the plants and their biomass is a method is a chemical form of energy from the producer. This is the chemically from our energy passes through the various tropical level in the food chain, and this process is transfer of energy through the various tropical level of the food chain is known as the flow of energy. There is the most important here, the flow of energy. All the function of the ecosystem depend on the flow of energy through it. There is a figure, is a box represent the tropical level and the pipes depth of the energy flow in a out of the east tropical level. The quantity of energy flowing through the successives is the tropical level decreasing indicated by the reduced size of the box and thickness of the pipe in the figure. This is because all the energy entering at the each tropical level is not used to production of the biomass due to flowing two reasons. The first is there a part of energy not be utilized as a and the lose the heat, and second is important here, a part of it is used of the organism and the lose the heat for their own metabolism through their process of respiration. If the herbivorous consume 1000 calories of the plant energy in form of food, the only 100 calories is converted into the herbivorous tissue, and the 10% calorie is the first level carnivorous, and only 1 calorie into the second level of carnivores, and this is known as the 10% of flow or the ecological rule of thumb. Thereby, only 10% of energy is transferred to the next higher tropical level. Shown in this picture, here the energy flow is the ecosystem is a box indicate the standing crop biomass and pipe indicate the energy of flowing. There is a sunlight is autotroph, herbivorous, primary carnivorous, secondary carnivorous, and decomposer. There is a show in this is the 10,000 calorie here of first is autotroph, but is a herbivorous is only 1,000 calorie is accept. There is a primary is a carnivorous is the 100 calorie, but at least last is a 10% is a calorie is acceptable. There is a most important for the 10% rule, a thumbs rule here. There is a transfer for the energy or only for a 10% of other animals. Here the entry process of energy flow can be summarized in the following 4 steps is here most important. And the flow of energy in the ecosystem away to the liner are one way. And every step is a food chain is energy received by the organism is also used to the urban metabolism and maintenance. The leftover the pass to next higher tropical level. Thus the energy flow increases and they are decreasing with the success of tropical level. That is the most important here. Thus the energy flow decreasing with the successive tropical level. There, if the flows the ecological thumbs rules of 10%, that is called to the ecological thumbs rule of 10%. The number of steps is a limit of 4 or 5 in a food chain for transfer of energy. There is a most important topic here. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है पहाड़ी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। देखिए ये कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि पहाड़ी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है। कहते हैं ऊर्जा पहाड़ी तंत्र में सौर विकिरण के रूप में प्रवेश करती है। ये तो आपने समझ लिया होगा कि रेडिएशन के रूप में जो है ये प्रवेश करती है पहाड़ी तंत्र में, और उत्पादकों द्वारा खाद्य पादप जैव भार में परिवर्तन करता है, और पादप द्वारा जो संग्रहित खाद्य एवं जैव भार ऊर्जा का रासायनिक रूपांतरण भी होती है। कहते हैं उत्पादों की यह रासायनिक ऊर्जा खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक सदन में पहुंचाई जाती है। कहते हैं विभिन्न पोषक सदनों पर खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण ऊर्जा का प्रभाव कहलाता है। यानी इसी को ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी फ्लो कहते हैं, कि एक पोषक सदन से दूसरे पोषक सदन पर ऊर्जा जो ट्रांसफर होती है उसी को हम एनर्जी फ्लो कहते हैं। यानी सिंपल शब्दों में यही है कि विभिन्न पोषक सदनों पर खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण ऊर्जा का प्रभाव कहलाता है। कहते हैं पहाड़ी तंत्र के समस्त कार्य इसमें से ही गुजरती हुई ऊर्जा के प्रभाव पर निर्भर करता है। कहते हैं एक बॉक्स भी हम देखेंगे जिसमें बॉक्स में पोषक सतह पे नालियां प्रत्येक पोषक सतह के अंदर या बाहर ऊर्जा प्रभाव को दर्शाया गया है। क्रमबंधी पोषक सतह में ऊर्जा प्रभाव की मात्रा में हर्ष होता है, जैसे कि
घटते आकार के बक्सों एक कम मोटाई की जो है नलियों द्वारा दर्शाई गई है। ऐसा किसी भी स्तर पर प्रवेश कर रही ऊर्जा का पुनर्रूपण जैव भार में रूपांतरण न हो पाने के कारण ऐसा होता है, जिसके कुछ चरण हैं। तो पहला चरण तो यही होता है कि ये ऊर्जा का एक भाग नष्ट जो है उपभोग में ला लिया जाता है, ठीक है। और दूसरा स्टेप यही होता है कि ऊर्जा का एक भाग जीवों के श्वसन की क्रिया द्वारा जो अपव्यय प्रक्रिया द्वारा होता है। यदि शाकाहारी अगर मान लीजिए कि 10,000, ठीक है, यानी 1,000 कैलोरी लेता है, तो पादप द्वारा जो उपभोग खाद्य के रूप में करता है सिर्फ 100 ही कैलोरी की शाकाहारी परिवर्तन करेगा। अगर आगे हो जाएगा तो सिर्फ 10% कैलोरी ही मांसाहारी एवं केवल 1% जो सतर के मांसाहारी को प्राप्त होगा। यानी 10% का नियम ये कहलाता है, या इसको हम अंगूठे का परिस्थितिक नियम भी कहते हैं। यहाँ पर केवल 10% ऊर्जा का ही प्रभाव अगले स्तर पर पोषण पर पहुँचता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। अगर आप ये फ्लो चार्ट में देखना चाहोगे तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सिर्फ 10% ही अगले जो है जो उपभोक्ता है उस पर जाता है। कोई भी अगर कंज्यूमर हो तो वो उसमें सिर्फ 10% ही जाती है। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हो कि यहाँ सूर्य का प्रकाश दिखाया गया है और इसमें स्वयंपोषी, शाकाहारी, प्राथमिक मांसाहारी, द्वितीयक मांसाहारी और घटक। देखिए इसके जो बॉक्स हैं धीरे धीरे कम होता चला जा गया है। तो इसका कारण क्या है? देखिए पहले जो स्वयंपोषी पौधे होते हैं उसमें 10,000 कैलोरी उनमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, लेकिन वही तो कोई शाकाहारी उनको खाता है तो उनमें सिर्फ 1,000 कैलोरी ही ट्रांसफ़र होती है। लेकिन अगर शाकाहारी को अगर मांसाहारी खाने वाले होते हैं तो सिर्फ 100 ही कैलोरी उनमें रूपांतरित होगी, लेकिन अगर उनको भी खाने वाला है तो सिर्फ 10% ही जो है जाएगा। तो लास्ट में जो है अपघटक, जिसको 1% ही ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जो एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। इतना याद रखना कि प्रत्येक सतर पे जो है 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होता है। कहते हैं अगर ऊर्जा प्रवाह की समझ प्रक्रिया को अगर हम संक्षिप्त में देखें तो 4 इंपॉर्टेंट बातों के साथ आप इसको याद भी रख सकते हो माइंड में। अगर वो डायग्राम नहीं समझ में आया फिर भी ये 4 बातों को आप अपने माइंड में रख सकते हो। पहली बात तो ये है कि एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव रैखिक यानी एक दिशा में होती है, यानी एक ही दिशा में चलता है, ठीक है। अगर उसको वो खा रहा है तो उसको वो खा रहा है तो सिर्फ 10% ही चलती है। कहते हैं खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक लेवल में जीवों द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा उनके स्वयं के अपचाय यानी अनुरक्षण देखभाल में भी प्रयुक्त होती है, यानी आपके बॉडी मेंटेनेंस में भी जो है कुछ परसेंटेज लॉस्ट होती है। और ऊर्जा का जो शेष बच जाता है पोषण स्तर के अगले स्तर पर स्थानांतरित हो जाती है। अंत उपभोक्ता पोषण स्तर में ऊर्जा के प्रभाव में हर्ष धीरे धीरे होता रहता है, यानी कमियां होती रहती है। अगर ये परिस्थिति तंत्र के 10% के अंगूठे के परिस्थितिक नियम का अनुसरण करती है, यानी ये 10% जो रूल है आगे ये ट्रांसफर होती रहती है। ऊर्जा स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला के 4 या 5 लेवल तक ही सीमित रहती है, क्योंकि उससे आगे चलेगा तो आपको पता है कि वहाँ ऊर्जा प्राप्त होगा ही नहीं, इसलिए 4 से 5 लेवल तक चलती है। आपने ऊपर डायग्राम में देखा जहाँ 4 लेवल दिखाया गया, लेकिन लास्ट में जो था कंज्यूमर, लास्ट में आपने देखा होगा जो कि अपघटक था, उसमें जो है 1% ही ऊर्जा स्थानांतरित होगा, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखती है।